In my previous classes, I have discussed basic proportionality theorem (BPT) and converse of basic proportionality theorem or converse of BPT. Today we will start exercise 6.2. Now, in first question, this is very easy. It is given that D is parallel to BC. Here AD is given, DB is given, A is given. You have to find EC. You can apply basic proportionality theorem here. Since D is parallel to BC, therefore AD by DB is equal to AE by EC, and then by cross multiplication method you can find the value of EC. Similarly, in this case also AD by DB is equal to AE by EC. Three parts are known and one is unknown. You can find it by cross multiplication method. Now, second question is based on converse of BPT, where sides are given, and this is not the figure of the question number 2. You have to draw the figure, and if the sides and the parts are proportional, not sides, parts are proportional, then EF is parallel to QR, otherwise not. Now question number 3, we will start from question number 3. Now question number 3, in figure 6.18, this is the figure. LM is parallel to CB and LN is parallel to CD. Prove that AM by AB is equal to AN by AD. Now the figure is clear. In this figure, LM is parallel to CB and LN is parallel to CD. You have to prove that AM by AB is equal to AN by AD. Now proof. In triangle ABC, this triangle, this side is parallel to this one. Therefore we can write we can apply basic proportionality theorem here, and AM by AB, अगर हम लोग AM by यहाँ टोटल ले रहे हैं तो इधर भी हम लोग क्या लिखेंगे AL by AC. Therefore AM by AB is equal to AL by AC. Similarly in triangle ADC, ये ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है ADC, LN is parallel to CD. तो यहाँ पे भी हम लोग अगर AL by AC लिख रहे हैं तो ये क्या होगा AN by AD. देखो AM by AB is equal to AL by AC और AN by AD is equal to AL by AC from BPT. Now from 1 and 2, in both the cases we have AL by AC common. Therefore AM by AB is equal to AN by AD. Now question number 4. D is parallel to AC, this side is parallel to AC, and DF, this one is parallel to AE. You have to prove that BF by FE is equal to BE by EC. Very easy question. What is given? DE, this one is parallel to AC and this is parallel to this one. You have to prove that BF by FE is equal to BE by EC. Now in triangle BAC, ये पूरा ट्राइंगल देखो BAC, आपका ये जो D है वो किसके पैरेलल है? आपके AC के पैरेलल है. इसलिए अगर यहाँ हम लोग BPT अप्लाई करते हैं तो BD बाई DA इज इक्वल टू क्या होगा BE बाई EC. ठीक से देखो ये और ये पैरेलल है तो BD बाई DA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BE बाई EC. Similarly, DF is parallel to AE. तो हमारा क्या आएगा BD by DA is equal to BF by FE. अब देखो from 1 and 2 दोनों में BD by DA आ रहा है हमारा. Therefore BE by EC is equal to BF by FE. क्वेश्चन नंबर 5. देखो एक ट्राइंगल हमारा ऐसा. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये जो DE है DE इज पैरेलल टू OQ, ये OQ के पैरेलल है. वैसे ये DF किसके पैरेलल है? OR के पैरेलल है. तो जहाँ पर ये पैरेलल है हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं? BPT अप्लाई कर सकते हैं. हम लोगों को प्रूव करना है ये जो EF है वो किसके पैरेलल होगा? QR के पैरेलल करना है. अब देखो ये ट्राइंगल POQ, इस ट्राइंगल में POQ में D और OQ पैरेलल है, इसलिए हमारा क्या आ जाएगा PE by EQ is equal to PD by DO.
बीपीटी अप्लाई कर रहे हैं हम लोग यहाँ। वैसे इधर वाले ट्रायंगल में क्या आएगा, डीएफ पैरेलल है ओआर के, तो पीडी बाई डीओ इक्वल टू पीएफ बाई एफ आर। अब दोनों केस में हमारे क्या आ जा रहा है, पीडी बाई डीओ दोनों में कॉमन हो रहा है, तो पीई बाई ए क्यू इक्वल टू क्या आ रहा है, पीएफ बाई एफ आर। अब देखो हम लोग क्या ले आए, पीई बाई ई क्यू इक्वल टू पीएफ बाई एफ आर। तो इस पूरे ट्रायंगल में अगर हम लोग देख रहे हैं पी क्यू आर में पीई बाई ई क्यू इक्वल टू पीएफ बाई एफ आर है, तो ये ई क्यू ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो हमारा क्या आया था, पीई बाई ई क्यू इक्वल टू पीएफ बाई एफ आर, हेंस इन ट्रायंगल पी क्यू आर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। जब आप पैरेलल प्रूव करेंगे तो क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है, ए बी सी हमारा पॉइंट्स है, ओपी पर ए है, ओ क्यू पर बी है और ओ आर पर क्या है, सी है। इस तरह से कि ए बी क्या है हमारा, पी क्यू के पैरेलल है और ए सी किसके पैरेलल है, पी आर के। हम लोगों को प्रूव करना है कि बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। यहां पर भी आप लोग क्या करोगे, बीपीटी अप्लाई करोगे। अब ये लाइन और ये लाइन क्या आपस में पैरेलल है, तो हमारा क्या आ जाएगा बताओ, ओ ए बाई ए पी इक्वल टू क्या होगा, ओ बी बाई बी क्यू। देखो यहां लिखा है ओ ए बाई ए पी इक्वल टू ओ बी बाई बी क्यू। और वैसे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ओ ए बाई ए पी इक्वल टू ओ सी बाई सी आर, ओ ए बाई ए पी इक्वल टू ओ सी बाई सी आर। अब देखो दोनों में ओ ए बाई ए पी आ रहा है आपका, तो ओ बी बाई बी क्यू इक्वल टू ओ सी बाई सी आर। देखो ओ बी बाई बी क्यू, ओ बी बाई बी क्यू इक्वल टू क्या आ रहा है, ओ सी बाई सी आर। तो फ्रॉम 1 and 2 ओ बी बाई बी क्यू इक्वल टू ओ सी बाई सी आर। अगर हम लोग ओ बी बाई बी क्यू इक्वल टू ओ सी बाई सी आर देखें, ऑब्जर्व करें इसको ठीक से, तो यहाँ देखो साइड ये जो पार्ट से ये क्या है, प्रोपोर्शनल हो गया, इसलिए ये बी सी और क्यू आर क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। सिंस ओ बी बाई बी क्यू इक्वल टू ओ सी बाई सी आर, हेंस इन ट्राइंगल ओ क्यू आर बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बीपीटी।